वेलकम बैक। अच्छा जी, वैसे आई हैव अ कन्फेशन, मुझे भी ज़्यादा किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिलता अगर मैं कंपेयर करूं अपनी टीनेज लाइफ से। बट एज अ स्टूडेंट मुझे याद है कि इफ़ आई वुड बोरो अ बुक फ्रॉम आवर लाइब्रेरी, जब तक वो किताब ख़त्म नहीं हो जाती, ना पढ़ाई में दिल लग रहा होता था, ना खाने पीने का दिल चाह रहा होता था। यहाँ तक कि जब हैरी पॉटर की सीरीज़ हम पढ़ते थे एज किड्स, मुझे याद है कि रात को लाइट भी चली जाए तो लैम्प की रोशनी में पढ़ रहे होते थे। तो आज किताबों से दूरी की वजह क्या है? एंड इफ़ यू वुड लाइक टू गो इनटू स्पीड रीडिंग एंड लुक फॉर ग्रेट रिकमेंडेशंस, आप कहाँ जाएं? तभी हमने आज बुलाया है पाकिस्तान के पहले बुक ट्यूबर को। शाहरुख नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले 2.5 साल के अरसे से वो मुख्तलिफ बुक्स को रिव्यू कर रहे हैं। अगर आप इनकी यूट्यूब को देखें तो तकरीबन 20,000 प्लस की फॉलोइंग है एंड ही ऑल्सो हैव अ सब्सटेंसिव नंबर फॉलोइंग हिम ऑन फेसबुक। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख, गुड मॉर्निंग टू यू। Good to see you, Siddha. मुझे ये बताएं कि बीइंग एन HR प्रोफेशनल, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ अ डिजिटल HR कंपनी, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे, या आपकी अपनी चॉइस होती है? डू यू रिव्यू फिक्शन और डू यू रिव्यू फैक्ट्स? खुद अपना बेंड किस तरफ है? Okay, so first of all, please accept my gratitude for inviting me to your show. Pleasure. It's a pleasure to be here. And very good question, Siddha. My bent is now more towards the non-fiction side. I think I'm not giving a sweeping statement, but I think fiction एक age तक till the teenage it works very well, because वो आपकी curiosity को, imagination को जो boost up करता है. But once you cross the teenage, then you need to focus more towards how you can make it big in the corporate world in your life. So life books, self-help books, philosophy, psychology, especially history. Because you know, as they say, people who do not learn from the mistakes of history are forced to repeat them. और एक और कहावत भी है कि the only thing we learn from history is that we do not learn from history. You're absolutely right. History has a way of repeating itself, but I will very respectfully differ from it, because अगर आप आइंस्टाइन की तरफ भी देखें तो उसने कहा था कि imagination is more important than knowledge. मुझे ऐसा लगता है everything that is there in self help और दूसरे लोगों का जो ज्ञान है, जो उनकी साल की मेहनत और रिसर्च है, of course it can help you. But fiction has its own way of actually sparking your imagination. That's a very good point, and I'm very happy that you mention Einstein, because he is one of my people that I look up to. And you're very right. Einstein ने कहा था कि imagination is more powerful than knowledge. एक और बात Einstein ने की थी जिसने actually मुझे book reading पे drive किया, कि curiosity is what took me so far. तो मैं जब तीसरी जमात में था, वहीं पे मुझे मेरी साइंस की टीचर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से इंट्रोड्यूस करवा रही है। जो दो बातें, एक आपने जो कही नॉलेज वाली, इमेजिनेशन वाली, और जो क्यूरियोसिटी वाली, उसके बाद मैंने रोल्ड डाल और जूल्स वर्न को पढ़ना शुरू किया, राइट? Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, and 20,000 I was a Leagues Under huge the Sea. रोल्ड दाल फैन। मैं आपको बताऊं, मैंने ग्रेड 3 यानी 5 तक मैंने रोल्ड दाल की सारी किताबें पढ़ ली थी। What's your favorite रोल्ड दाल? It's Charlie and the Chocolate Factory. Really? And Boy. That's his autobiography. No, Boy is the first half of his life and then going solo. I love both of them. और अगर आपने नहीं पढ़ी, बताए आपको, मैं स्कॉटलैंड गई थी तो I actually happened to visit the place where he was there. Awesome. और दूसरा मेरे ख्याल में, if I'm not wrong, somewhere close to Glasgow is the church where he was baptized, and there's a bench which is in his name. But मुझे ये बताएं, मुझसे अक्सर recommendations मांगी जाती हैं। आप भी बताएं शाहरुख, when you select a book, हमारे यहाँ तो देखिए हर चीज़ आजकल लोग कहते हैं views and ratings के लिए होती हैं। So when you select a book and you review it, उसमें आपको लगता है आप best sellers को उठा रहे हैं, आप उस book को की बात कर रहे हैं जो already trending होती है, या किसी खास personality से inspire होते हैं, या you pick what you like? Okay, so it's a blend of all the factors that you just said. Okay. It can be my choice as well, but based on the audience. इसमें मैं थोड़ा सा, I just want a couple of minutes, क्योंकि मैं I just want to mention why I started this mission Read Pakistan. Yeah. So I started teaching in 2018 in a couple of leading business schools in the city of Karachi. और जब मैं पढ़ाता था तो the amusing thing was कि जब मैं बच्चों से बात करता था, स्टूडेंट से, and I used to give a book reference. I used to see blank faces के, for instance, अगर business management के बच्चे हैं तो उनको Good to Great उन्होंने पढ़ी होनी चाहिए, जिम कॉलिंस की, उनको 0 to 1 पीटर थील का पता होना चाहिए, उन्हें In Search of Excellence by Tom Peters का पता होना चाहिए. Absolutely. But whenever I used to interact with them, I used to have blank faces. And then this was one of the things which actually triggered कि मुझे कुछ करना चाहिए. What is my individual responsibility? दूसरे नंबर पे सिद्धरा जो सबसे important चीज़ है, which is very important for the audience and the whole Pakistan to hear, कि जब मैंने आपको बताया मेरा एक इंटरेस्ट है हिस्ट्री के अंदर, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू की तो I found out कि 9वीं से 13वीं सदी के दरमियान
फ्रॉम द 9th till the 13th century that was the golden period of Muslims. उसमें बेतहाशा हमने साइंटिफिक डिस्कवरीज की. सो मैं एक साइंटिफिक बंदा हूँ, मैं पॉजिटिविस्ट हूँ, तो मैंने सोचा इसकी रीज़न क्या थी. तो रीज़न ये थी सिद्रा कि खलीफा अल मामून जो 7वें अब्बासिद खलीफा थे, उन्होंने बगदाद में उस ज़माने में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी कायम की, लाइब्रेरी विद द नेम बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम. और वहाँ से वो पूरी दुनिया के मुस्लिम स्कॉलर्स को जमा करते थे, कंसोलिडेट करते थे. एंड द ब्यूटी ऑफ द थिंग वाज कि जो भी स्कॉलर आता था वहाँ पे और जो किसी और ज़बान से अरबी ज़बान में किताब को ट्रांसलेट करता था, उसको उसके वज़न के हिसाब से गोल्ड देते थे. एंड द रिजल्ट ऑफ दैट इज वी प्रोड्यूस द लाइक्स ऑफ द मुस्लिम प्रोड्यूस द लाइक्स ऑफ अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने अलजेब्रा के ऊपर काम किया, अल-बतनी जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काम किया, इब्न सीना जिन्होंने कैनन ऑफ मेडिसिन लिखी, 150 किताबें लिखी. एंड द बेस्ट ऑफ ऑल अल बेरूनी जिन्होंने पिंड दादन खान में बैठ के अर्थ का सरकमफ्रेंस मालूम किया. सो वी प्रोड्यूस दीज स्टॉलवर्ड्स एंड we have been on a decline if you talk about the Muslim community. मैं आपको पर्सनली इस पे अपना व्यू दूं शाहरुख, मुझे लगता है कि we have somewhere confused knowledge and information. यानी हम अगर जिसको एज ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं और हम समझते हैं कि हमारे लिए तमाम मालूमात at our fingertips है, we can Google, we are still limited by our query. लेकिन you know the art of stumbling upon things, यानी आप जितनी भी दुनिया की जिद्दत देखें, innovations देखें, discoveries देखें, किसी ने एक you know नाक की सीध में जाके एक सीधा रास्ता नहीं पकड़ा था. They had a vision, they had a hunch, and during their research they would find a lot more. But जिस तरह आप हिस्ट्री का जिक्र कर रहे थे, तो मुझे याद है कि कहा जाता है कि जब चंगेज़ खान, हलाकू खान, जब ये सारी फिर लड़ाइयाँ हुई, तो कहा जाता है कि दरियाए फ़ुरात एक दफ़ा वहाँ पे जो खून रेज़ी हुई उसकी वजह से इस दरिया का पानी पहले सुर्ख हुआ खून की वजह से, और दूसरी दफ़ा वो स्याह पड़ गया स्याही की वजह से, बिकॉज वही जो आप नॉलेज सिटी की बात कर रहे थे, दर्जनों सैकड़ों हज़ारों की बुनियाद पे इन किताबों को बहाया गया, so that the knowledge is not with people. So if you're seeking knowledge, it will take you so far. अच्छा, before we end this particular segment, शाहरुख, आपकी recommendations, last few books that you have reviewed, जो आप हमारे viewers को चाहेंगे कि वो ज़रूर पढ़ें. Yeah, I would love my people to read a couple of books that I recommend from my heart of heart. एक तो है Man's Search for Meaning by Viktor Frankl, one of the best books. The best book that I have read so far is मन चले का सौदा by अशफाक अहमद साहब. मेरे ख्याल में whatever I have read, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी किताब जो 3 कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट करती है, ब्लेंड करती है, सूफिज्म, तसव्वुफ और क्वांटम फिजिक्स. मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी किताब नहीं पढ़ी. उसके अलावा द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्ट्रैंड रसल, ये ऐसी किताबें, इनफैक्ट बर्ट्रैंड रसल की तो मैं कहता हूँ सब पाकिस्तानियों को कि जाएं सारी किताबें खरीद के. My personal Bertrand Russell is Why I'm Not a Christian. Absolutely. I think कि आप उसको और उसके अंदर जब आप अक्सर बात जब करते हैं ना कि skeptical essays में, one of the things I really like is how he argues, because बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते कि Bertrand Russell was just not a philosopher, he was also a mathematician. So he argues कि जो हमारा एक बड़ा पुराना मफरूज़ा है कि सब माया है, उसको वो scientifically debate करते हैं कि आपका मेरा line of vision, किसी भी object पे पड़ने वाली लाइट एंड डिस्टेंस, तो जो मैं देख रही हूँ वो कोई और शख्स देख ही नहीं सकता. Therefore everything is an illusion or a delusion, however you would like to say it. But thank you so much शाहरुख for being here. Excellent recommendation. और मेरी recommendation क्या होगी मैं आपको आगे प्रोग्राम में दिखाऊंगी.